नमस्कार मु नम्रता। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्यत गठन मध्य असंभव। अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जो शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होइछि ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्य गठनर सही गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग देइछि। तेबे आमर ए प्रयास एमिति जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांकर क्लास नेबे और तांकर प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी इंग्राजी। क्लास नेबे नवकिशोर साहू सर। Hello my dear children all over Odisha or across Odisha. Today I just think it's my last class because your schools and colleges are restarting after 7 to 8 months of a pandemic corona. Today my topic is the solitary reaper. My dear children, don't know what to waste your time because from this particular topic I am re-energizing myself towards the discussion of this particular topic, and the name of the topic is the solitary reaper. Solitary reaper is a very interesting poem. You just listen to me because this particular poem consists of 8 stanzas. This particular poem consists of 8 stanzas. And each stanza has 4 lines. My dear children, each stanza has 4 lines. Remember, a stanza of 4 lines. A stanza of 4 lines, particularly in English, a stanza of 4 lines is called quatrain. You just please write down or note down, my dear children. If you just want to get some more knowledge about the various types of features of poems or any sorts of poem or the poetry. So the name of the poem is the Solitary Reaper. Solitary Reaper, written by William Wordsworth. Talking about this particular poem, William Wordsworth was one of the greatest poets of nature in English literature. He is still regarded as a great worshipper of nature. प्रकृतिर जने महान उपासक, प्रकृतिर जने महान अलग उपासक जने महान कवि होचंती विलियम वर्ड्सवर्थ, who was born on 7th April 1770 at Cockermouth in Lake District of England. इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट कोकरमाउथ रे हलाकि जन्म ग्रहण करथिले के कहलो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। एवं जेहेतु सिंस हिज बर्थ ही वाज सराउंडेड बाय नेचर, जन्मरु जेहेतु विभिन्न प्रकार प्रकृतिर मनोरम परिवेश रे से बढ़ी उठितले ही ग्रू अप एमिड्स प्लेंटी ऑफ नेचर और ब्यूटीज ऑफ नेचर. दैट इज व्हाई नेचर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम मेकिंग ए ग्रेट पोएट. तांको गोटे महान कवि करिबारे नेचर बहुत किछि भूमिका थिला. दैट इज व्हाई अल्टीमेटली ही बिकम फेमस एज ए ग्रेट नेचर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो दिस पर्टिकुलर पोएम इज द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय आवर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी रीपर? डियर माय चिल्ड्रन, solitary means lonely, alone, and you have such type of words in your first prose, a letter to God. Because Lencho lived with his family in a solitary house on the top of a hill. So solitary means lonely or ekudia ba nisanga jahaku kocho. And what is the meaning of reaper? Reaper means one who cuts or reaps grains. Je sasya gudika kate ba sasya gudiku bida bandhya bandhe taku sasya katali kuha jaye. So the Odia term of the solitary reaper is called sasya katali, nirjana sasya katali ba nisanga. Because when the reaper was cutting grain or cutting crops lonely in the mountain regions of Scotland रो mountain region रे जेतले से जियटी सस्य काटू थिला, actually she had no one else. ता पाखर आउ केही नथिले. she was alone, she was solitary in that situation. से एकमात्र थिला, से निसंग थिला. से जेतले सो निर्जन सस्य कटाली, सॉलिटरी रिपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आ मन रखिथियो पिला माने दिस पर्टिकुलर पोएम कंसिस्ट ऑफ 8 stanzas. One stanza or every stanza has 4 lines. So when a stanza of 4 lines comes, this particular stanza of 4 lines is called quatrain. Always remember, my children, here qua means 4. Qua means 4 and train means lines. So a stanza of 4 lines is called quatrain. So this particular poem comprising 8 stanzas, each stanza having 4 lines. Remember. So what does the poet want to say about his vivid or about his descriptions of a solitary reaper and the song or the haunting melody being rendered by the girl? That particular girl was a maiden. Se jiyoti pila gote maiden thila. Maiden means unmarried girl. गोटे कुमारी बा अविवाहित झील को आम कहूँ मेडन. देख फर्स्ट स्टांजा रु कवि कौन कहते ना, बिहोल्ड हर सिंगिंग इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहोल्ड? बिहोल्ड मीन सी. तामाने कवि जेते बेले से निर्जन शस्य कटाली गीतटी को शुणुंट से जस्ट पहाड़ उपरकू उपरकू जाऊँच.
ଯେତେବେଳେ ହେଲା କି କବି ତାର ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡେନ୍ର ବା ସଲିଟାରୀ ରିପର ବୋଲେ ନିର୍ଜନ ଶସ୍ୟ କଟାଳି ବୋଲି ସେ ଝିଅର ଗୀତଟି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ହିୟର ଦ ପୋଏଟ୍ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦ ପିପୁଲ ହୁ ଆର୍ ପାସିଂ ବାଇ ଦ ପୋଏଟ୍ who are just going through the poet. What appeal does the poet make to the people? पाखर जाउथिबा लोक मानकु कवि कोन अनुरोध करिसेंती जे behold her singing in the field जे ओ माय पीपल ओ द पैसर्स बाय हे बाटोई माने तु माने जो ए पर्वत पाखर पार्श्व देकी जाउछ तुमे दया करी से फील्ड रे जो झियोटी हला कि सुंदर भाबरे गीतटी गाउची तुमे ताकु टिके देखो यू जस्ट लुक एट द गर्ल यू जस्ट सी द गर्ल बिकॉज़ शी इज सिंगिंग एलोन इन द फील्ड येन सॉलिटरी हाईलैंड लेस हियर यन मीन्स दैट not over there पिला बहिरे गोटे भूल लिखा है yon the meaning of yon is not over there actually yon is that जे सही solitary highland lass what is the meaning of highland means the mountain regions of Scotland स्कॉटलैंड पिला मन रखिबो इंग्लैंड रो गोटे बॉर्डर देश इंग्लैंड रो सीमावर्ती देश को आजे स्कॉटलैंड सो हाईलैंड रिमेंबर हाईलैंड मीन्स माउंटेन रीजन्स पार्वतीय अंचल को जाए माउंटेन रीजन्स एंड लास्ट मीन्स मेडन और अनमैरिड गर्ल कुमारी बा अविवाहित झिया ताकू को जाए लास रिमेंबर सो व्हाट डज द पोएट अपील टू द पैसर्स बाय कवि तार प्रथम स्टांजा रे कवि बाटोई मान को अनुरोध करुछंती जे बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड जे माउंटेन रीजन रो ऊपर खेत रे से जो झियोटी गीत गाउछि ताकू तुमे दया करी देखो यन सॉलिटरी हाईलैंडेड व्हाट इज दैट गर्ल लाइक ना दैट गर्ल इज सॉलिटरी दैट गर्ल इज एलोन से झियोटी हला कि पार्वत्य अंचल ऊपर जो खेत रे कार्य करूछि से एकुटिया अछि शी इज द हाईलैंड लैस मीन्स शी इज द अनमैरिड गर्ल ऑफ द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड जोड़ा कि इंग्लैंड सीमावर्ती देश से पार्वत्य अंचल खेत उपर कार्य करुवा झियोटी एकुटिया अछि रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ देन व्हाट इज दैट गर्ल डूइंग कवि जतबेले अन्य लोक मान को अनुरोध करछन्ती बाटोई मान को अनुरोध करछन्ती व्हाट डज द पोएट सी अबाउट द गर्ल व्हाट डज द पोएट सी अबाउट द गर्ल इन द फील्ड ऑन द माउंटेन रेंजेस हियर द गर्ल इज रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ माय चिल्ड्रेन एटी कवि कहउछन्ती कोन दैट व्हेन द पोएट सीज द गर्ल इन द फील्ड on the top of the mountain पर्वतर शिखर रे खेत रे जतबे झियोटी कार्य करुथिबार कवि देखिछन्ती कवि कोन देखुछन्ती ना दैट गर्ल इज रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ सो बाय हरसेल्फ मीन्स एलोन बाय हरसेल्फ मीन्स लोनली बाय हरसेल्फ मीन्स सॉलिटरीली से झियोटी कोन करूछि शस्य काटुछि रिपिंग मीन्स कटिंग द ग्रेन और कटिंग द कॉर्न और कटिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ एकुटिया से गीत गाउछि But the song of the girl or the haunting melody of the girl or the melodious voice of the girl has made the poet so happy, so delighted, extremely joyous. किंतु गीतर से कवि शुणुछंती से गीतटी जेतेबेले सॉलिटरी रिपर बोले निर्जन शस्य कटालीटी गाउछि कोडी पर्वतर शीर्षर क्षेत्र से कौन तार गीत एते सुंदर हर म्यूजिक इज सो मेलोडियस हर म्यूजिक इज सो अट्रैक्टिव हर म्यूजिक इज सो अपीलिंग हर म्यूजिक इज सो सिडक्टिव दैट द पोएट रिक्वेस्ट द पैसर्स बाय पाखरे जाउथिबा बाटोई मान को कवि अनुरोध करूछंती ओ पैसर्स बाय यू स्टे हियर तुम्हें दया करी ए पाखर जदि जाउछ ताले तुम्हें रही जाओ और जेंटली पास और इफ यू कांट स्टॉप तुम्हें जदि न रही पारुछ ताले यू जस्ट गो स्लोली यू जस्ट पास द माउंटेन रीजन स्लोली मीन्स जेंटली मीन्स स्लोली ताले तुम्हें हुए तो रही जाओ ना धीरे धीरे जाओ कारण एभली मर्मस्पर्शी एभली हृदय स्पर्शी गीत तुम्हें केबे हेला सुनिबा को पाइबो नाही से गीत कार हुज सॉन्ग इज इट इज द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर वेयर इज द सॉलिटरी रिपर इज in the field on the top of the mountain where are the mountains are in Scotland not in England कवि जदिव इंग्लैंड किंतु इंग्लैंड बॉर्डर बोले समीपवर्ती बा सीमावर्ती देश होची स्कॉटलैंड तेणु स्कॉटलैंड गोटे निर्जन शस्य कटाली पर्वत शिखर उपरे खेतर से कौन कर गीत गाउछि केतेबेले गीत गाउछि ना व्हेन शी इज कटिंग एंड बाइंडिंग द क्रॉन नंबर 2 एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन माउंटेन रीजन रो खेत उपरे हला कि झियोटी कोन करूछि शी इज कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन शस्य काटुछि एवं शस्य को मध्य बिड़ा बांधुछि बट इन द मीन व्हाइल ए समय मध्य रे शी सिंग्स ए मेलानकोली स्ट्रेन जदर शस्य काटुछि बिड़ा बांधुछि व्हाट इज द गर्ल आल्सो डूइंग व्हाट इज द सॉलिटरी रिपर आल्सो डूइंग सॉलिटरी रिपर पुनी कोन करूछि ना शी इज सिंगिंग ए मेलानकोली स्ट्रेन डियर माय चिल्ड्रेन मेलानकोली स्ट्रेन मीन्स
very sad song. Melancholy means sad. Remember, my children, melancholy. So melancholy means sad. M-A-L-A-N-C-H-O-L-Y. Melancholy means sad. And strain means sung. In poem, the word strain means sung. So what is the girl doing while reaping and binding the corn? कर्ण बोले शस्य को काटिकी बिड़ा बांधुला बेले झीटी आउ कौन करुछि जहाँ कवि देखा पाउछंती द पोएट कैन सी द गर्ल और द सॉलिटरी रीपर सिंग्स ए मेलानकोली स्ट्रेन ओ लिसन मीन्स हु डज द पोएट अपील टू लिसन द पोएट अपील्स टू द पैसर्स बाय से पहाड़ पार्श्व देकी जाउथिबा बाटोई मान को कभी अपील करुछंती अपील मीन्स रिक्वेस्ट कभी अनुरोध करुछंती फॉर द भेल प्रोफाउंड. So what is the meaning of a vale? Remember, vale is the short form of a valley. Vale is the short form of a valley. जहाँ को तुम्हें पिला उपत्यका कहूच. उपत्यका को short रे कुआ जाए poetic word रे बा काव्यत्व शब्द रे ताकू कुआ जाए vale. So vale is the short form of valley. अच्छा पिला valley कहाँ कुआ जाए? In geography you know something about valley? Valley means the flat area between two hilltops. दुईटी पहाड़ शीर्षर मझे जो फ्लैट एरिया थाए दैट इज कॉल्ड वेल और वैली जहाँ को तुम्हें ओडिया उपत्यका बेली कहूछ. सो द लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड बिकॉज द वैली ऑफ द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड से जो पार्वतीय अंचल अच्छी जार खेत उपर झीटी गीत गाउची जो खेत कि से शस्य काटी बिड़ा बांधुची से कहूँ व्हाट इज द वैली लाइक और व्हाट डज द वेल लुक लाइक से पार्वत्य अंचल उपत्यका देखा जाउची केमिति ना भेल प्रोफाउंड हियर प्रोफाउंड मीन्स पिला वाइड स्प्रेड मीन्स प्रोफाउंड SPREAD विस्तृत जहाँ जो वाइड एंड स्प्रेड वैली पूरा विस्तृत पूरा व्यापक वैली रे तार गीतटी कौन कर इज ओवरफ्लोइंग विथ साउंड मीन्स द म्यूजिकल साउंड ऑफ द गर्ल्स संग से सॉलिटरी रिपर जो गीतर जो मूर्छना तार जो गीतर संगीतमय हला कि रागिणी एवं मूर्छना से संपूर्ण विस्तार उपत्यका को कौन कर आंदोलित करिछि ता माने द हंटिंग मेलोडी ऑफ द गर्ल्स संग हैज filled the valley with what has filled the valley with musicality with the musical atmosphere चारियाडे गोटे संगीतर गोटे अबारित धारा पूरा खेली जाइछि सते जेपरि झियर गीतरे संपूर्ण वैली बा वैलीटे जो संपूर्ण उपत्यकाटी संगीतरे आंदोलित हेउछि. No nightingale did ever chant. Here, my children, what do you mean by chant? So chant means sing. Chant means sing. CHAUNT. Chant means sing. कवि कहउछंती सॉलिटरी रिपर एते सुंदर भाବରେ गीत गाउछि कोउडी ना स्कॉटलैंड रो माउंटेन रीजन रो खेत उपरे कवि कहउछंती कोन से नाइटिंगेल मींस नाइटिंगेल इज ए स्मॉल यूरोपियन बर्ड ग्रे इन कलर यूरोप महादेश अति सुंदर ग्रे कलर बार्ड टाइप कहुए नाइटिंगेल जहाँ को पिला तुम ओडिया रे बुलबुल कहूछ आमर को कवि बुलबुल थिले सरोजिनी नायडू वाज बुलबुल फॉर हर मेलोडियस वॉइस एबे को महान संगीत शिल्पी बुलबुल जहाँकर घर मुंबई रे लता मंगेशकर हिंदी चलचित्र गायिका तेणु से कहते वर्तमान नाइटिंगेल गीत एते द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल और द म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल वाज सो अपीलिंग एटा एते हृदयस्पर्शी थिला जे कवि कहउछंती जे मते लागुची सते जेपरि कोनसी बुलबुल मध्ये एबोली गीत केबे गाई नथिबो. मोर वेलकम नोट्स टू द वरी बैंड्स. व्हाट डू यू मीन बाय वरी बैंड्स? वरी मीन्स टायर्ड माय चिल्ड्रन क्लांत एंड बैंड्स मीन्स ट्रैवलर्स और पैसर्स बाय जहाँ को जो क्लांत पथिक माने क्लांत पथिक गण क्लांत पथिक विशेष कवि कहउछंती नाइटिंगेल मध्ये एबोली कोनसी गीत गाई नथिला जो नाइटिंगेल को गीत को को माने वेलकम करंती ना ट्रैवलर्स. साउदी अरब बा अरब रो सैंड्स रो अर्थ होची डेजर्ट्स एडी सैंड्स पिला बाली नुहे सैंड्स रो अर्थ होची डेजर्ट्स जहाँ को तुमे मरुभूमि कहउछ और अरब रो हला कि मरुभूमि रो सेडी हंट. व्हाट डू यू मीन बाय हंट? HAUNT. हंट मीन्स ओसिस जहाँ को पिला मरुद्यान कह जाए मरुभूमि किछि किछि जगार मरुझर थाए जहाँ को फाउंटेन थाए से विभिन्न प्रकार है कि गछ थाए से कि विभिन्न प्रकार है कि कौन कहल पिला छायायुक्त है कि वृक्ष थाए जोटी क्लांत पथिक माने विश्राम नियंती. व्हेयर टायर्ड ट्रैवलर्स और फिजिकली एग्जॉस्टेड ट्रैवलर्स टेक रेस्ट. कवि कहउछंती ए नाइटिंगेल गीत एते हृदयस्पर्शी हर वॉइस इज सो अपीलिंग हर वॉइस इज सो सिडक्टिव शी हैज गॉट सच टाइप ऑफ हंटिंग मेलोडी इन हर वॉइस और इन हर सॉन्ग
मत तो लगुच आरबर डेजर्ट्स रे आरबर मरुभूमि रे जेतेबेले क्लांत पथिक माने कौन करती ओएसिस ओएसिस माने सेडी हंट बा छायायुक्त गछ तले जेतेबेले विश्राम निहंती एवं से विश्रामटा को जेतेबेले वेलकम से विश्राम नेला बेले काहाकू वेलकम करती व्हाट डू दे वेलकम दे वेलकम द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल नाइटिंगेल रो गीत को बा बुलबुल रो गीत को जेतेबेले एई पथश्रांत पथिक माने आरबर डेजर्ट्स रे बा आरबर मरुभूमि रे जेतेबेले उपभोग करती कवि कहते नाइटिंगेल रो गीत अपेक्षा आज मत कौन करुछि ना ये सॉलिटरी रिपर बा निर्जन सस्याटर गीत आहुरी मते आनंद देइछि आहुरी मते उत्साहित करिछि आहुरी मध्य मते अनुप्रेरणा देइछि एवं मते गोटे पेरेनियल सॉन्ग बा गोटिए पेरेनियल अर्थ होछि शाश्वत बा मते गोटे चिरंतन गीत भली लागुछि सत जेपरि गीतर कोनसी प्रकार शेष नाही एज इफ दिस सॉन्ग हैज नो एंड इट इज पेरेनियल पेरेनियल मीन्स हैविंग नो एंड और लिमिटलेस जाहु पिला कहउछ असीम जाहु कहउछ शाश्वत जाहु कहउछ चिरंतन A voice so thrilling never was heard. N-E apostrophe E-R. So N-E apostrophe E-R, that is the poetic word. So never, N-E apostrophe E-R means never. Never is the negative adverb. Never. से कौन कवि कहते ये सॉलिटरी रिपर रो गीतटी एते थ्रिलिंग थिला. What do you mean by thrilling? T-H-R-I-L-L-I-N-G. Thrilling means romantic. Thrilling means attractive. Thrilling means appealing, हृदयस्पर्शी मर्मस्पर्शी स्वागत योग्य कवि कहते सॉलिटरी रिपर वॉइस टी एते हला कि थ्रिलिंग थिला जे नेवर वाज हर्ड मीन्स आई हैड नेवर हर्ड एभली प्रकार गीत हृदयस्पर्शी गीत मु केबेले कोठी सुनी नथिली एवं कहार गीत ना इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड पिला माने तुमे जानि थिबो कुकू इज द अनाउंसर और द हार्विंगर ऑफ स्प्रिंग बसंत ऋतुर उद्घोषक बसंत ऋतुर आगमन को है उद्घोषणा किए करे कुकू कुकू माने कोइली एंड यू हैव सीन कुकू पर्टिकुलरली इन द मैंगो ट्री आर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग बसंत आगमन प्रथम सूचना दिए किए कहलो कुकू कुकू मीन्स कोयल कवि कहते एते रोमांचित स्वर एते है कि प्राणवंत स्वर एते आकर्षणीय स्वर एते हृदयस्पर्शी स्वर कहार सॉलिटरी रिपर बोले निर्जन शस्य कटालीर जे स्प्रिंग समय कौन सी कुकुर गीत है कि मुझे गीत शुणी नी ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज कारण स्प्रिंग रे जेतेले कुकू बोले कोइली गीत गाए सेतेले से कौन करे जानिछ स्कॉटलैंड रो नॉर्थ वेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड रो उत्तर पश्चिम पार्श्वरे अति दूर रे थिबा जो आइलैंड्स भी पिला जानथबा द्वीपपुंज से द्वीपपुंज रे हला कि कुकुर गीत जेतेले आसिकी से समुद्रर निस्तब्धता को भंग करे समुद्रर नीरवता को भंग करे कहार गीत द वॉइस ऑफ द कुकू द थ्रिलिंग वॉइस ऑफ द कुकू द रंची वॉइस ऑफ द कुकू द अट्रैक्टिव वॉइस ऑफ द कुकू द अपीलिंग वॉइस ऑफ द कुकू दैट हैज द पावर कुकुर बोले कोइलीर से गीतर है कि प्रकृतर से क्षमता अच्छी गीतर मध्य है कि से भली प्रकार गभीरता अच्छी सारमर्म अच्छी जी कि स्कॉटलैंड उत्तर पश्चिम अवस्थित द्वीपपुंजर नीरवता को मध्य भांगिबार किंतु कवि कहते ना नाइटिंगेल जोटा कि आरबर पथिक मानू स्वागत योग्य बा आरबर पथिक मानू प्रकृत में मर्मस्पर्शी है कि सांत्वना दिए प्रकृत में पथश्रांत को संपूर्ण है कि आनंदित दिए से विमोहित करे से समोहित करे से आकर्षित करे ना सीए ना नाइटिंगेल गीत सहित एबे कुकू बोले स्प्रिंग बोले बसंत ऋतुर कुकुर गीत मध्य समान नुहे इवन द कुकूज वॉइस इवन द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल cannot be equated or cannot be compared with the melodious voice of the solitary reaper सॉलिटरी रिपर गीत को है कि जिते से पहाड़ पार्श्व छिड़ा कवि शुणी से निर्जन शस्य कटालीर गीत कवि कहते तार गीत आगे प्रकृत इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर द पोएट फील्स कवि अनुभव करुछंती नीदर द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल नॉर द सॉन्ग ऑफ द कुकू हैज एनी मैच विथ द सॉन्ग सॉलिटरी रिपर गीत सहित कुकू बोले कोइलीर गीत बसंत समय इवन नाइटिंगेल गीत कोठी आरबर डेजर्ट्स भितर से मध्य तुलनीय नुहे से मध्य समतुल नुहे नाइटिंगेल गीत नुहे कि प्रकृत में कुकुर गीत नुहे प्रकृत में ए दुईट गीत को अनायास ए गीतटे को है कि संपूर्ण है कि फेडेड कर मलिन कर ये ना सॉलिटरी रिपर गीत
the song of the solitary reaper. Will no one tell me what she sings? कवि वर्तमान पिला टिके द्वंद्व पड़ जाइछंती. Now the poet finds himself in a spot of a bother. The poet is in troubled mind because the poet cannot understand the song of the night, solitary reaper song. कवि वर्तमान निर्जन सस्याटल गीतटा को जेते अधिक शुणुछंती से सेते विमोहित सेते उल्लसित होई उठिछंती सेते आनंदित होई उठिछंती किंतु कवि एठी गोटे द्वंद्व पड़ जाइछंती. माय डियर चिल्ड्रेन, हियर द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी इन ट्रबल. कोन कवि कहउछंती एठी देखो कवि टिके डिपार्चर हो जाइछंती. नाइटिंगेल रो गीत सुनी सारला परी कवि जतरा सम्मोहित हो जाइछंती कवि टिके चुपचाप हो जाइछंती. ही टेक्स ए पॉज माने ही मेक्स ए शॉर्ट लीजर, ही मेक्स ए शॉर्ट साइलेंट और द स्टॉप. से कौन कहउछंती विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. अरे हे पथिक माने हे बाटोई माने तुमे जो पहाड़ पार्श्व देकी जाउछ जो पहाड़र शीर्ष देश रे से निर्जन शस्य कटालीटी कौन करूछि शस्य काटुची बिड़ा बांधुची एवं एई भली प्रकार गोटे मर्मभेदी एवं हृदयस्पर्शी गीतटी गाउची. कहीं मते तुमे कहि परिबो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? ए सॉलिटरी रिपर टी को गीत गाउची तुमे मते कहि परिबो से प्रकृति रे कोन कहिबा को चाहूची? व्हाट शी वांट्स टू से और द एक्सप्रेस इन हर मेलोडियस सॉन्ग. परहैप्स काहे के कवि एक कथा कहले जानिछ मन रखिथिबो पिला माने द सॉलिटरी रिपर बिलोंग्स टू द कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड. She does not belong to the country of England just like the poet. कवि बोले से इंग्लैंड देश नुहे बरर इंग्लैंड रो सीमावर्ती देश स्कॉटलैंड रे. तेणु से जो कविता गीत गाउची से होची गेलिक लैंग्वेज GAELIC. गेलिक होची इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड रो गोटे स्थानीय भाषा जेमति तमर ओडिया पिला माने अछि उर्दू अछि गुजराती अछि बेंगली अछि डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री इंडिया. सेही बली गोटे लोकल लैंग्वेज होची गेलिक GAELIC. गेलिक लैंग्वेज रे गीत गाउची. But the language is not known to the poet. कवि के से गेलिक लैंग्वेज टा हला कि स्कॉटलैंड रो से जो प्रांतीय भाषा आंचलिक भाषा सहित कवि परिचित नुहे. सेति भाई कवि जदियो गीतर म्यूजिकल तार मेलोडी टा को बार मेलोडी माने को मधुरता को जदियो कवि पसंद करूछंती एवं से गीतर जो हला कि कोन रहिछि कहले झंकृता से गीतर जो सुंदर लालित्य जदियो कवि को सेटा मंत्रमुग्ध करिछि. दो द सॉन्ग इज appealing to the poet, though the song mesmerizes the poet, जदियो गीतटी सॉलिटरी रिपर गीतटी कवि को झंकृत करिछि कवि हृदय को खूब आनंद प्रदान करिछि बा उल्लास प्रदान करिछि. कवि किंतु से गीतर भाषा बुझी पारुनांती. हियर द पोएट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग बिकॉज द रिपर्स सॉन्ग इज इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्कॉटलैंड एंड दैट लोकल लैंग्वेज इज कॉल्ड द गेलिक. से गेलिक बोली गोटिए स्कॉटलैंड रो स्थानीय भाषा रे गीत गाउछि. The language with which the poet is not familiar, जो लैंग्वेज सहित कवि आद्व परिचित नुहंती. तेणु से कवि कहउछंती मते लागुची द प्लेंटिव नंबर्स 4. मते लागुची सते जेपरि ता गीतरु कोन सी प्लेंटिव नंबर PLANTATIV प्लेंटिव नंबर्स. प्लेंटिव नंबर्स मीन्स सैड सॉन्ग्स. सैड सॉन्ग्स सते जेपरि मला लागुची से कोन सी दुखपूर्ण गीत गाउची PLINTIVE. प्लेंटिव नंबर्स माने कौन सी सैड सॉन्ग लागुची फ्लो होउची फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स बा हुए तो कौन सी प्राचीन समय कौन सी दुखद घटना गुड़ी ता जीवन रे घटीला न एमिति हेइतिला. देयर वर सम बैटल्स लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत वर्ष पूर्व कौन सी युद्ध हेइतिला कौन सी फाइट्स हेइतिला बा स्कॉटलैंड रो विभिन्न प्रकार आदिवासी मानक मध्य युद्ध हेइतिला. जो युद्धटा रे से तार जीवन रो तार व्यक्ति विशेष को तार फैमिली पर्सन को हरैतिला. बट द पोएट इज नॉट श्योर. पिला माने देखो जेते अधिक रु अधिक गीत शुणुछंती निर्जन शस्य कटाली कोटी स्कॉटलैंड रो पर्वत्य अंचल क्षेत्रु कवि सेते मंत्रमुग्ध हो जाइछंती कवि विमोहित हो जाइछंती. किंतु कवि झीर गीतर भाषा किसी बुझी पारुनांती जेतु भाषाटा गेलिक भेली गोटे स्कॉटलैंड रो आंचलिक भाषा रे लिखित. किंतु कवि यह कहते आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट डेड श्योर, आई एम नॉट कॉक श्योर. मु निश्चिंत नुहे हुए तो कौन सी प्राचीन घटना हुए तो कौन सी दुखद घटना हुए तो कौन सी है दीर्घ दिन घटना हुए तो बहुत वर्ष पूर्व तार परिवेश विभिन्न प्रकार वंशधर भितर विभिन्न प्रकार राजवंश भितर हुए तो बैटल्स बोले युद्ध होता. बैटल्स मीन्स युद्ध. से युद्ध हुए तो परहैप्स द गर्ल हैज लॉस्ट सम हर नियर एंड डियर वंस. हुए तो सॉलिटरी रिपर बा निर्जन शस्य कटाली तार प्रिय प्रिय परिजन को हरैछि जहाँफल से बैकग्राउंड बा से पृष्ठभूमि पर आधारित रचित ये गीतटी गायिकी से निज हृदयर वेदना से निज हृदयर पेन जंत्रणा को से प्रकाश करुछि. और इज इट सम मोर हम्बली ले फैमिलियर मैटर ना पारे दिस सॉन्ग कुड हैव
on the basis of some routine work. Familiar means day to day, usual बा कौन सी दैनंदिन आमर सबुदिनिया कौन सी प्रकार घटना उपरे आधारित हुए तो थाई पारे. मैटर मीन्स इनसीडेंट आमर सबुदिनिया जीवन रे जहाँ किसी घटुची सेमती हुए तो सॉलिटरी रिपर बा निर्जन शस्य कटालीर सबुदिनिया जीवन रे किसी दुखद घटना घटी. हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, नाउ ए कमर्शियल ब्रेक फॉर ऑल ऑफ यू. You just give me some time, even 2 or 3 minutes, just to refresh myself, and after the commercial break I am just re-welcoming you to the dais. Okay, thanks. Hello my dear children, welcome again to the G dais. I am just simply going to give the finishing touches to the last 3 stanzas of this very interesting poem or the amusing poem. The poet could not understand anything about particularly from the song of the girl, because the poet had no knowledge or no idea about the local language. I have already told you this local language in which the girl was singing the song just in the mountain regions of Scotland, in the particularly field. It was a Gaelic language, that was the local language of Scotland. That is why the poet could not understand anything from the poet, but the melody of the song was very impressive, was very attractive, and was also very delightful to the poet. Here the poet just tries to deduct the various types of themes from the girl songs, my children. पिला माने झियर गीतरु सॉलिटरी रिपर र गीतरु बा निर्जन शस्य कटाल रे गीतरु विभिन्न प्रकार अर्थ थिबा कवि एटी निजे डिडक्ट करिसंती बोइले कवि एटी निजे अनुमान करूछंती. इट इज श्योरली द कंजेक्चर ऑफ द पोएट. कविंकर एटा केवल अनुमान, बट दिस कंजेक्चर इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट. या कोन से सत्य ऊपर आधारित नुहे. कवि कहउछंती आउ कोन हेइ थाई पारे हला कि से झियर गीतर सारमर्म. What could have another background, what could have another theme or the meaning of the girl songs. एटी देखो पिला कवि आउ थरे बढ़िया कथा कहिछन. Is it some more humble? What is the meaning of lay? Lay means also song, humble means ordinary. कवि कहउछन से जो सॉलिटरी रिपर ए जो मर्मर स्पर्शी बा हृदय स्पर्शी गीतटी गाउची से गीतरे कौन से प्रकार ऑर्डिनरी सॉन्ग बा कौन से साधारण गीत नुहे तो बा जीवन रो कौन से नित्य नैमितिक घटना ऊपर आधारित गीत नुहे तो सम नेचुरल सरो नले हुए तो कौन से प्राकृतिक दुख बा प्रकृति जो दुख दिए जमती बन्या बात्या इत्यादि आश्रे जो दुखटा आमे मनुष्य समाजटा कौन करू आमे सफर करू बा आमे आक्रांत हो बा कौन सी नेचुरल सरो बा कौन सी लॉस हुए तो झिया किसी हराई थाई पारे. सी मे हैव लॉस्ट एनीथिंग इन द पास्ट और सी मे हैव सफर्ड फ्रॉम सम पेन. हुए तो अतीत रे कौन सी जंत्रणार मध्य से शिकार हेई थाई पारे. Then the poet that has been कवि मत लगुछि सते जेपरि ए गुडी तार गीतर सारमर्म हेई पारे. ए गुडी हला कि तार से जो मेलोडियस बा मधुर गीतर ए गुडी हला कि वेदनाभीर गीतर एबा मर्मस्पर्शी गीतर ए गुडी हुए तो सार कथा बा ए गुडी जिस्ट हेई जाई पारे. व्हाट एवर द थीम पुन वर्तमान कवि पुनश्च सेई कौन मार्मिक सेई हृदयस्पर्शी परिवेश को पुनश्च कवि फेरी आछंती. हियर द पोएट मेक्स अ डिपार्चर to again particularly to that haunting melody of the song, to that happy atmosphere of the song which has filled the widespread valley, माउंटेन रिजन रो से व्यापक भ्याली उपत्यका को जो संगीत रुद्धिमंत करिछि बा भरि दैछि सेइटी को पुनश्च कवि प्रत्यावर्तन करिछंती. कवि कोन कहउछंती व्हाट एवर द थीम, व्हाट एवर द जिस्ट ऑफ द गर्ल सॉन्ग, सॉलिटरी रिपर रो गीतर जहाँ भी कौन सी सारमर्म हो जहाँ भी कौन सी तार है कि मुख्य उद्देश्य है द मेडन सैंग. मेडन माने से कुमारी जो गीत गाउछि दैट इज कॉल्ड मेडन. कैसे जो मेडन बा अनमैरिड गर्ल से जो कुमारीटी गीत गाउछि बा अविवाहित झियटी गीत गाउछि किंतु मते को लागुछि आजी भर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. मते लागुछि सते जेपरि तार गीतर कौन सी शेष नाही. हर सॉन्ग सीम्स सिंपली लिमिटलेस और एंडलेस टू मी. द सॉन्ग अपीयर्स इटर्नल टू मी. The song of the solitary reaper appears perennial to me. सती जेपरि गीतटा मो पाई गोटे शाश्वत मो पाई चिरंतन एवं मो पाई हला कि गोटे असीमित गीत भली लागुची. सती जेपरि गीतर शेष नाही, सती जेपरि गीतर कोनसी सीमा नाही. आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क. मु जते पहाड़ पाखरे थिली मु ताकू देखिथिली केभली. इन व्हाट कंडीशन डिड आई फाइंड द गर्ल. गर्ल मीन्स द सॉलिटरी रिपर और द मेडन. से कुमारी से स्कॉटलैंड रो से चासी झियटी से एक्चुअली गोटे चासीर झिय थिला गोटे पिजान बा गोटे फार्मर झिय थिला. मु ताकू हला कि प्रथमे काम करुथिबार देखिथिली कोट केते बेले ना ओवर द सिकल बेंडिंग. सिकल माने दा दा को जाकू इंग्लिश रे कुआ जे प्रकार हला कि कर्व टूल बंका जाइथिबो एवं गोटे ब्लेड थिबो एवं तार गोटे हैंडल थिबो. सबबरे दा रे हला कि से कोन करे बेंडिंग झुंकी पड़ी कि शस्य काटी कि बिड़ा बांधु थिबार मु ताकू देखिथिली. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल.
सेमती चुपचाप होई सेमती नीरव रे सेमती निस्तब्ध हवा भितर मु तार गीत गुड़ी को शुणी चली एवं गीत गुड़िकर निश्चक आनंद अनाबिल आनंद प्राप्त करके चली आज आई माउंटेड ऑफ द हिल तापर धीरे जितेबाला है कि पहाड़ ऊपर को जिते उठिली ता गीतटी मो आहरी क्लीयरर अधिक स्पष्टतर ही उठिला आहरी अधिक हृदय स्पर्शी आहरी मर्मभेदी आहरी मधुर हो उठिला द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर तेणु से गीतर जो संगीत से झीर जो संगीतटा से दैट परमानेंटली ट्रेजर्ड इन माई हार्ट हेलो 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 नमस्कार नमस्कार My name is Lopanudra Swain from Narsinghpur, Cuttack. हाँ कह So my question is, what are the present things which may be contributing to the plaintiveness of the girl song? आउ टिके मा टिके कह हालांकि आई जस्ट अनफॉर्चुनेटली आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली व्हाट वाज What are the present things which may be contributing to the plaintiveness of the girl song? हाँ से कौन जो झीटी जो गीत गाँची बर्तमान रहा कि कौन से है कि जिनस एभली किसी अच्छे कि जोटा कि है कि झीर विषाद भरा गीत बा मधुर गीत किंतु विषाद भरा गीत को आउरी कंट्रीब्यूट करुच्ची आउरी आगू नौची प्रेजेंटिंग हो पारे हर फैमिली में भी पुअर स्ट्रिगन तार परिवार हुए तो दारिद्र्य भरा होती हुए तो किसी दिन पूर्व से क्या हरई हुए तो एवं है कि बहुत है कि अनिश्चितता भितर इन ग्लोरियस अनसर्टेनिटी सी इज लिविंग हर लाइफ से तार जीवनटा अनिश्चितता भितर गति करुच्ची परहैप्स सी हैज नो होप ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर भविष्य जीवनटा सुखकर हे बोलिकी से सन्देह अच्छी यही सब है कि वर्तमान स्थिति को लेकिन से प्रकृत में खूब विषाद भरा हो जाइए सी हैज गॉन इनटू फ्रस्ट्रेशन और द डिसअपॉइंटेड जहाँफल तार गीतटी एत विषाद बा ये दुख और जंत्रणा भरा रही ओके द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर कवि कहते मुझे ऊपर ऊपर चली पहाड़ तार संगीतटी मोर हृदय को आहरी अधिक अधिक स्पर्श कला लंग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर तापर बहुत दिन एमती बीतीगला मो घर को चली आसिल आई रिटर्न होम लॉन्ग टाइम पास्ट लॉट्स ऑफ टाइम पास्ट बहुत दिन चलीगला बट अनफॉर्चुनेटली ये गीतटी को मुझे द्वितीय गीत के शुणा को पाइलिनी से हेलो अनदर कॉल हेलो हेलो हाँ, सर नमस्कार नमस्कार ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ କହୁଥିଲି हाँ କଟକରୁ। हाँ कटक टू विश्वजित नायक ସାର୍ ଡାଇଲେକ୍ଟର ମିନିଂ କ'ଣ? हाँ ଡାଇଲେକ୍ଟ डायलेक्ट ओके हाँ हाँ बुझी पारली तुम्हें आउ गोटा भल शब्द कला डायलेक्ट DIALECT ओके हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हाँ डायलेक्ट हूँ देख पिला वन टाइप ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट हूँ गोटा रिजनल लैंग्वेज रिजनल लैंग्वेज अर्थ हूँ पिला आंचलिक भाषा जमती आम ओडिशार आंचलिक भाषा कौन ओडिया गुजराती लोकंकर आंचलिक भाषा हूँ गुजराती महाराष्ट्र मराठी लोकंकर आंचलिक भाषा हूँ मराठा वेस्ट बेंगल लोकंकर आंचलिक भाषा हूँ कौन कहल बेंगली सेमती ये हूँ डियालेक्ट हूँ रिजनल लैंग्वेज ओके आउ यही रिजनल लैंग्वेज हूँ जहाँ मु पिला तुमको गेलिक कही तेणु कहते लंग आफ्टर बहुत दिन चलीगला अनफॉर्चुनेटली आई कुड हियर द वॉइस और द म्यूजिक ऑफ द गर्ल नो मोर मु आउ से झीर गीत शुणा को पाइलिनी किंतु जेते दिन पर्यंत से गीतटी है कि मते प्रतिध्वनित करुथिला लंगर लंगर द साउंड और द म्यूजिक इकोड इन माय हार्ट आई वाज गेटिंग मोर एंड मोर मेस्मराइज्ड मु अधिक रु अधिक मेस्मराइज्ड हो जाउथिली पिला एही होबली प्रकार 8टी स्टैंजा को नै कि ये सुंदर कविताटी नेचर पोएम रे लिखाई छि ए कविता को पिला इंग्लिश रे टिके मन रख दे आकु कहै जाय लिरिक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड लिरिक एभली प्रकार कविता को इंग्राजी रे लिरिक कह जाए लिरिक रो अर्थ होची गीति कविता जो कविताटा को गीत आकार लिखा जाए तब कह जाए गीति कविता दिस पर्टिकुलर पोएम इज ए लिरिक इज ए टाइप ऑफ पोएट आउट ऑफ 6 पोएट्री इंग्लिश जो 6 प्रकार कविता अछि ता भितर होची लिरिक गोटे कविता ओके तापर पिले हेलो 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 हाँ हेलो 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 हाँ कहतु हेलो ओके थैंक्स ओके तापर पिला माने आमर कविताटी जाऊ फॉर्चुनेटली आज आम शेष कले तापर आमर आउ जो वोकाबुलरी लैंग्वेज थिला को विषय फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज जेतिक समय हला कि द टाइम दैट इज ऑलरेडी लेफ्ट विथ आवर हैंड्स we have to simply proceed with the discussions of the rest of the vocabulary and the language work ebe pila language work opere tike dekho if you have your textbooks with you toma pakhare pila jodi ebe textbook अछि page 59 bahar karo gotie deichi gotie word ko ame kemdi noun and verb kariba okay प्रथमे कही लेट्स लर्न ग्रामर पेज नंबर 59 आई एम जस्ट टेलिंग यू प्लीज टर्न एट द पेज नंबर 59 और ओपन योर बुक एट द पेज नंबर 59 पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस People clean and decorate their houses
टॉपिक रो ना पिला लिखिदब फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवं एटा लिखिदब ग्रामर रो सेकंड पोर्शन लैंग्वेज वर्क पेज नंबर 59 पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस ऑब्वियसली पिला ए हाउसेस इज ए नाउन यस और नो बिकॉज इट इज ए नेमिंग वर्ड मु कहि एनी सोर्स ऑफ नेमिंग वर्ड इज ए नाउन एंड देयर इज द एडजेक्टिव यस और नो सो हाउसेस इज ए नाउन कौन कही पीपुल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस लोक मैंने से घर परिष्कार करती एवं घर गुड़ी को सुसज्जित करती नंबर 2 रे देखी किंतु द टेम्पल हाउसेस यू प्लीज मार्क द सेकंड सेंटेंस द टेम्पल हाउसेस 14 डिटीज DEITIES डिटीज मीन्स आइडल्स जहाँ को पिला तुम्हें कहो मूर्ति जे टेम्पल रे हला कि 14 हला कि मूर्ति रही This houses means it is a verb in the present simple. तामने पिला बुझ पारल in the first sentence people clean and decorate their houses here houses is a noun using after the adjective there but in the second sentence houses is a verb this verb is called finite verb or samapika kriya in the present simple tense so when you use a particular verb as the finite verb definitely this finite verb will come after the subject so the temple is a subject where a temple is a noun the temple गोटा हूँ सब्जेक्ट बा नाउन फ्रेज ता भीतर पिला टेम्पल टा हूँ नाउन तो तेणु ये आम कौन जानले पिला जे व्हेन यू यूज ए वर्ड एज ए नाउन एंड वर्ब पिला माने बुझ तुम जिते गोटे वर्ड को नाउन एवं वर्ब करिवो बोले विशेष्य पद एवं क्रियापद करिवो सब बेले पिला मन रख दिवो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड देन व्हाट इज द मोस्टली नाउन इज यूज्ड इन द सब्जेक्ट पार्ट एंड नाउन इज आल्सो यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पार्ट नाउनटा मोस्टली कहूँ अधिकांश क्षेत्र में नाउनटा कर्ता जगार बसे और कर्म जगार बसे बट व्हेन यू यूज ए वर्ब तुम जिते पिला मैंने वर्ब क्रियापद को यूज कर यू कैन यूज इट एज ए फाइनाइट वर्ब और यू कैन यूज इट एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब तुम्हें ताकू समापिका क्रिया रूपे भी हसैब असमापिका क्रिया रूपे बट व्हेन यू यूज ए वर्ब एज ए फाइनाइट वर्ब डेफिनेटली योर वर्ब मस्ट हैव टेंस तुम वर्ब पिला टेंस रखिबो बिकॉज द वर्ब दैट कैरीज ए टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब बट इफ द वर्ब हैज ओनली फॉर्म पिला वर्ब जदि केवल रूप अछि जेमति टू गो गोइंग गोर पास्ट पार्टिसिपल गन एगुड़ी होउछि नॉन फिनिट फॉर्म कारण एटा रूप द्वारा चिन्हित होउछि एटा टेंस द्वारा चिन्हित होउछि so the verb that shows tense is called finite verb but the verb that shows form is called non finite verb यही हूँ पिला आगे जान सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एवं नाउन वर्ब एटा तुम्हें पिला न जानले तार यूज ताहले तुम्हें केबेले गोटे वर्ड को नाउन वर्ब करि परिबनी आ नाउन वर्ब करबा हेलो हेलो सर प्रणाम प्रणाम सर माय नेम इज सत्यप्रकाश रेड्डी हां कोड कहू छ लाइक फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग सर मो मयूरभंज रु हां मयूरभंज रु कोहर बारा सर what is the tune of girl song happy sad soothing or sympathetic ठीक है आउट सर पिला को हेलो what is the tune of her song हां व्हाट इज ना मु कहू छी तमे टिके पिला कहले ट्यून वे दैट इज द टोन सेटा होची व्हाट इज द टोन ऑफ द गर्ल सॉन्ग तुम्हें सॉलिटरी पर पचारछ बुझिला बस सुनो मो कथा सुनो यू दैट पर्टिकुलर गाय फ्रॉम मयूरभंज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द टोन ऑफ द गर्ल सॉन्ग व्हाट इज द टोन पिला माने टोन रो अर्थ वॉइस नुहे सॉलिटरी पर जेते बेले स्कॉटलैंड रो माउंटेन रीजन बा पार्वत्य अंचल रे गीत गाउची से कुछ तार गीतर टोन टा कोन टोन रो अर्थ होची एटी टोन रो अर्थ होची तार से को भंगी रे गीत गाउची तार हला कंठस्वरटा एटी कहूनी तार भंगीटा कोन से कोन कहबा को चाहूची द टोनटा होची अनहैप्पी से दुख रे गीत गाउची ता टोनटा होची एगोनी जंत्रणा रे गीत गाउची जंत्रणा माने नुहे कोनसी फिजिकल अफ्लिक्शन कोनसी शारीरिक जंत्रणा नुहे एटा होची मार्मिक जंत्रणा एटा होची पिला हला कि मेंटल पेन मानसिक जंत्रणा तणु तार टोनटा होची अनहैप्पी ता टोनटा होची मध्ये एगोनी ता टोनटा होची मध्ये डिसअपॉइंटिंग हताश से दुखित अछि से हताश रहिछि से निसहाय देखा जाउछि तणु तार टोनटा होची अनहैप्पी बा एगोनी बा डिसअपॉइंटिंग कार द टोन ऑफ द सॉलिटरी रिवर ओके एबे पिला सुनो नाउन वर्ब तो मु कहिदली वर्तमान देखो गोटिए पिला वर्ड को आमे नाउन करबा केमती वर्ब करबा सेति भाई तुम गोटे वर्ड देइछि देखो पिला डांस अच्छा डांस को प्रथमे नाउन करबा मु तुम पिला कहि देइछि व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड एज ए नाउन रिमेंबर यू हैव टू यूज इट इन द सब्जेक्ट पार्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट केमिति हला कि द गर्ल्स डांस इज ब्यूटीफुल झीर डांसटा अति सुंदर अटे
केमिति पिला सब्जेक्ट जानिबो यूज व्हाट टू द वर्ब व्हाट इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर द आंसर इज द गर्ल्स डांस सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड डांस इज ए नाउन yes or no what is beautiful put the question what to the verb এই पर्टिकुलर क्वेश्चन पाई verb is verb जोटा कि प्रेजेंट सिंपल बा बी verb एटी व्हाट पकाओ व्हाट इज ब्यूटीफुल द आंसर इज द गर्ल्स डांस सो द गर्ल्स डांस इज ए सब्जेक्ट और नाउन फ्रेज एंड डांस इज ए नाउन बर्तमान मु तुमको कहितली पिला योर नाउन इज इन द सब्जेक्ट पार्ट बर्तमान देखो नाउन टा सब्जेक्ट पार्ट रे रहला yes or no एबो बर्तमान ऑब्जेक्ट पार्ट रे रखिबा केमिति वी एन्जॉयड द डांस we enjoyed the dance understand so enjoyed is a verb now put the question what did you enjoy तुम्हें कौन उपभोग कल answer is the dance so the dance is an object and the dance is a noun yes another call hello sir namaskar namaskar where are you speaking from सर मु गंजाम रु कहउतली श्रीनिवास पंडा हां एसबीएस स्कूल सर मते नाउन टा टिके सर किछि बुझा पड़लान टिके आउथर टिके बुझि जो हां टिके बुझाई दबा पिला मु तुमको एबे कहली जे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड नाउन हेउची एक नामवाचक शब्द कोन से व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी इत्यादि को जे बुझाई से होची ओटा नाउन जेते बेले पिला तुमे सब बेले नाउन यूज करबा मन रखथिबा पिला मोस्टली ताकू सब्जेक्ट पार्ट रे बसैबो सब्जेक्ट माने कर्ता नहले ताकू ऑब्जेक्ट माने कर्म मु प्रथमे कहली द गर्ल्स डांस इज ब्यूटीफुल ताले व्हाट इज ब्यूटीफुल ना द गर्ल्स डांस ताले द गर्ल्स डांस ता सब्जेक्ट ता भीतर पिला डांस ता रहिला नाउन एथरा बुझि पारला पंडा नंबर 2 वी एन्जॉयड द डांस सो व्हाट डिड यू एन्जॉय तुमे कोन उपभोग कल इफ वी इज द सब्जेक्ट सो द डांस इज द ऑब्जेक्ट What did you enjoy? तुम्हें कौन उपभोग कल The answer is the dance. So the dance is the object. If the dance is the object, definitely dance is a noun. Yes or no? Your dance as a noun should be used either in the subject part or in the object part. जेते बेले पिला नाउन करिवो सब बेले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट को देखि नबो ताले तुमर नाउन हे जिवो ऑब्जेक्ट ता तुमर पिला दुईटी गोटा हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास 9th रे पढी थिबो एठी मोस्टली ऑब्जेक्ट बाहर करिवा को हेले व्हाट आ हु इत्यादि प्रश्न हु हेले व्यक्ति विशेष को बुझेइबो व्हाट हेले कोनसी वस्तु बा पदार्थ को बुझेइबो आउ एठी डांस ता गोटे वस्तु बा पदार्थ को बुझेला सो डांस इज ए नाउन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट कॉल हेलो Yes, sir. Hello. Yes, my girl. Hello, sir. What's your problem? Sir, my name is Lopamudra Sahu. Lopamudra Sahu. Sir, more got a question. You have got a question. Please share your question with me. Who does Wordsworth compare the farmer girls with why? Who does Wordsworth? Compare the farmer girls with why? With why? Yes, sir. Who does Wordsworth? Wordsworth में से सुनो मां सेटा होची वर्ड्सवर्थ कवि वर्ड्सवर्थ फार्मर गर्ल को का सहित तुलना करछन त Yes, sir. Who does Wordsworth compare the farmer girl? Why? And why? Yes, sir. फार्मर गर्ल रो गीत को से तुलना करिसंती कुकु बोले कोइली रो गीत सहित आ नाइटिंगेल बोले बुलबुल गीत सहित फार्मर गर्ल्स को एटी तुलना करा जायछि गोटे मेडन सहित गोटे कुमारी बा ताकू तमर मध्य गोटे पोएम रो अछि देखो लास माने असोज कुमारी जाको जो अनमैरिड गर्ल ता माने फार्मर गर्ल बोले जो कृषकर झियो जे कि स्कॉटलैंड रो पार्वत्य अंचल से क्षेत्र एकुटिया गीत गाउछि सार ताकू गोटे मेडन बा लास सहित एटी तुलना करा जायछि लास और मेडन मीन्स दैट पर्टिकुलर गर्ल और द सॉलिटरी रीपर ओके किंतु तार संगीत को जदि पिला कहिबो तार संगीत को का सहित तुलना करा जायछि कवि तार संगीत को दुईटी पक्षीर गीत सहित तुलना करिसंती प्रथमे हर सॉन्ग इज कंपेयर्ड विथ द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल नंबर 2 हर सॉन्ग इज कंपेयर्ड विथ द सॉन्ग ऑफ द कुकू यस और नो सो डांस को पिला तुम देखो नाउन एवं भर कली आ गोटे वर्ड नाउन प्लस भर करूची टिके देख भलो वर्डटा करूची भलो वर्डटा तुमर करूची देख नेम सो नेम हाँ ओके नेम को केमती नाउन करवा व्हाट इज योर नेम तुम्हारा ना कौन अटे दैट इज ए नाउन व्हाट इज योर नेम हियर इज ए वर्ब सो योर नेम इज द कॉम्प्लीमेंट पिला एटी ऑब्जेक्ट नुहे कॉम्प्लीमेंट तुम्हें केमती जान लो बिकॉज बी वर्ब
जो फ्रेजटा बी भर पर बसे बी भर किए पिला इज आमार वाज वेयर सेटा होची गोटे कॉम्प्लीमेंट सेटा ऑब्जेक्ट नुहे बी भर पर पिला जहाँ बसिबो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट रे देखो पिला नेम टा हला नाउन यस सर नो इफ आई से हला कि हर नेम इज निकिता okay so here is a verb so her name is the subject yes or no and name is a noun देखा कॉम्प्लीमेंट जगह नाउन बसिला सब्जेक्ट जगह नाउन बसिला ओके तापर हमें जब वर्ब करिबा व्हेन यू हैव टू यूज दिस वर्ड एज ए वर्ब केमिति आई नेम्ड द चाइल्ड दीपू so your named is a verb in the past simple tense I named the child दीपू मु पिला को दीपू बेली ना देली माने दीपू ना रे ताकू डाकिली माने आई एड्रेस द चाइल्ड एज दीपू सो हियर नेम र अर्थ होची गेव नेम बा नामकरण करिबा एठी हला नामकरण कली कना पास सिंपल रे अछि ओके ए होची पिला नाउन वर्ब तापर 2 नंबर टाट पिला टिके कहि दउछि वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन इंडिया कंसिस्ट डैश 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी एटी प्रीपोजिशन पिला कंसिस्ट अनुसार करिबा ऑफ कंसिस्ट ऑफ र अर्थ होची गठित वाक्य को पूरा भूली जिवो जेमति वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन द मूव इज बेस्ट डैश ए रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ट पाखरे प्रीपोजिशन पिला ऑन व्यवहार करिबा सी इज ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ से ईश्वर कृपार भल स्वास्थ्य पाई ब्लेस्ड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन विथ खाली पिला जोटी देखिबो ब्लेस्ड अछि विथ केमिति द मैन इज ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड पिलाटी ईश्वर कृपार गोटे संतान प्राप्त करिछि शाल आई ऐड सम सुगर डैश योर टी टू योर टी नॉट इन योर टी बिकॉज ऐड इज फॉलोड बाय टू द कैमल इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन एकमात्र माध्यम डेजर्ट बोले मरुभूमि होची कैमल बोले ओट सो मीम्स इज फॉलोड बाय ऑफ सेफ्टी रूल्स प्रिस्क्राइब प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर प्रिकॉशन जोड़ी नाउन पिला रहिबो प्रतिषेधक व्यवस्था सेठी प्रिपोजिशन करिबो अगेंस्ट पर्टिकुलर वर्ड पई पर्टिकुलर प्रिपोजिशन बसिबारु काकू कुआ जाय वर्ड्स फॉलोड बाय प्रिपोजिशन ओके तापर तो पिला फ्रेजाल वर्ब सरै देइथिली आउ पिला अनफॉर्चुनेटली हमर रहि गला किछि पाठ जोटा कि तमर ये फ्रेज एक्टिव पैसिव विदाउट बाय फ्रेज आउडा नॉन फिनिट क्लॉज रहि गला आउडा पिला सुंदर इंग्लिश रहि गला मेक अप आउ मेकअप बा मेड अप मेड फ्रॉम आउ ए जदि सुयोग मिले आमर हला कि प्रिय ओस्ता तरफ जदि किसी सुयोग मिले इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओस्ता if any opportunity comes particularly in the future just to be present before you and deliver my teaching towards you I will definitely complete the rest of the lessons or the rest of the teachings till then you all enjoy your class and just maintain the COVID rules and wear mask whenever you step out of your house and strictly adhere to the rules and the regulations being implemented by the government of Odisha as well as the government of India, particularly in the COVID, because this COVID pandemic is simply raising its ugliest head now because it is the winter season. Definitely we have to guard ourselves against corona by keeping ourselves distance from other persons, number one. Number two, we have to wear mask and we have to also use sanitizers, etc. Then we can just rest assure yourself of safety completely or absolutely. Till then, you just sit in your homes because the time has already come and the time is simply knocking at the door. Now I have to close the rest of the topics now. If opportunity comes, definitely I will come and again deliver my valuable teaching to all of you, my dear children. With this, I just come to an end of this topic. Thanks you. God Jagannath bless all of you all. Thanks. Bye.